السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. مس رباب، آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر اس پیشنٹ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اس جگہ سے، یہاں کے لوگوں سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ باقی دنیا کی طرح یہاں ہر وقت رباب رباب کی پکار اسے بے عزت کرنے کے لیے ہی لگائی جاتی تھی. سر، میں نے نہیں. رباب کی آواز کانپ رہی تھی. اندر سے خوف تھا کہ اس نے ایسی لاپرواہی کیوں کی. شاید خدا بھی غریبوں کے ساتھ نہیں ہوتا، تب بھی ہر کام کو اچھے سے کرنا چاہے بھی تو نہیں ہوتا. شٹ اپ. ڈاکٹر ہادی کا غصہ عروج پر تھا. وہ اسپتال کا چیف سرجن ہی نہیں بلکہ مالک بھی تھا. پورا سٹاف اس کے غصے سے کانپتا تھا، لیکن آج اس کی نظر میں صرف ایک چہرہ تھا، رباب. اس نے یہ نام، یہ رتبہ بہت محنت سے کمایا تھا. کسی کی لاپرواہی پر اب وہ چپ کیسے رہتا؟ آپ جیسی لاپرواہ نرس میں اپنے اسپتال میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ دھاڑا. پورا سٹاف تماشا دیکھ رہا تھا. کسی کو سانولی رنگت سے ہمدردی نہ ہوئی. رباب کی سانولی رنگت پر شرمندگی اور آنسو دونوں واضح تھے. سر پلیز، مجھے یہ جاب بہت ضروری ہے. میرے گھر کے حالات، میں نے غلطی سے، نوکری بہت مشکل سے ملی تھی اور اب ہاتھ سے جا رہی تھی. بس. ہادی نے میز کی دراز سے کچھ کاغذات نکالے اور میز پر پٹخ دیے. اگر جاب چاہیے تو ان پیپرز پر دستخط کرو، ورنہ تمہیں ابھی کے ابھی باہر نکال دیتا ہوں. رباب نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، کاغذات پڑھے بغیر سائن کر دیے. اسے صرف نوکری بچانی تھی، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس نے رباب کے پرکشش چہرے پر نظریں جمائیں. وہ ہی تراش سکتا تھا. وہ کسی اور کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا. یہ جنون تھا یا پاگل پن؟ ہادی کے ہونٹوں پر ایک عجیب معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی. جاؤ، ابھی کے ابھی وارڈ نمبر 3 میں رپورٹ کرو. رباب تیزی سے باہر نکل گئی، دل میں ایک انجانا سا خوف لیے. وہ نہیں جانتی تھی یہ صرف شروعات تھی. قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا. اپنی آنکھوں سے میٹے میٹے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا نہ ہو. رباب نرسنگ ڈیسک پر فائلز دیکھ رہی تھی کہ وارڈ بوائے زاہد اس کے قریب آیا. رباب بی بی، کل والے مریض کو تو دوائی مل گئی تھی نا؟ زاہد کی آواز پر تیزی سے اس کی جانب گھومی. ہاں، میں نے خود دی تھی، فائل میں بھی سائن کیے. رباب نے چونک کر جواب دیا. پھر ڈاکٹر ہادی اتنا بھڑک کیوں گیا؟ زاہد کی نظروں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہو. کیا اس نک چڑھے خوبصورت امیر کو صرف ڈانٹنا آتا ہے؟ کیسی توہین آمیز باتیں کہی تھی. اور وہ سائن؟ ہاں، سائن بھی کیے تھے. ایک دم سے اس کا سانس سوکھنے لگا. رباب کا دل دھڑک اٹھا. تمہیں کچھ پتا ہے؟ زاہد نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولا. میرا مشورہ ہے تم محتاط رہو. یہاں سب کچھ ویسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے. دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور بے دھیانی میں سر ہلا دیا. اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا. خدا سے دعا تھی کہ سب اچھا ہو. تم نے جو کاغذات سائن کیے تھے نا، وہ تمہیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں. کیا؟ زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اس نے کسی پیپر پر سائن کیے ہیں؟ ڈاکٹر ہادی نے سنا ہے تم سے ایک خاص قسم کا معاہدہ سائن کرایا ہے. پتہ کرو ورنہ دیر ہو جائے گی. رباب کی سانس رکنے لگی. وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر اچانک ہادی پر پڑی، جو دور کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. وہی معنی خیز مسکراہٹ، جیسے شکاری شکار پر نظریں جمائے ہو. رباب نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور غائب ہونے کی دعا کی. ایک پرانی بوسیدہ حویلی کے نیم تاریک کمرے میں ایک دبلی سی لڑکی دیوار سے ٹیک لگائے سہم کر بیٹھی تھی کہ رات سے اس کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا. ماں نے ڈانٹ کر کہا کہ تم جتنی بھی آواز سنو اٹھ کر مدد کو مت آنا، ورنہ وہ تجھے مار دے گا. اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں. اپنے باپ کو فرعون بنا دیکھنا بیٹی کے لیے آسان نہیں ہوتا. سامنے اس کا باپ درندگی کی حدوں کو پار کرتا ہوا اس کی ماں پر ہاتھ اٹھا رہا تھا. کمبخت عورت، زبان چلانا چھوڑ ورنہ آج تیرا دم نکال دوں گا. وہ غرایا. وہ بس اپنی بے گناہی کو ثابت کر رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی آواز پر اس نامرد کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی.
خون میں لت پت ماں زمین پر گرتی گئی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس آدمی نے پلٹ کر اسے دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ مار مار کر جب پسینے سے برا حال ہوا تو ٹھوکر مار کر باہر نکل آیا۔ اوپر سے ایک سخت چہرہ دادی کا دکھائی دیا، جو یہ منظر دیکھ کر نہ صرف خاموش رہی بلکہ شاباشی دیتے ہوئے بولی، شاباش بیٹے، یہی طریقہ ہے عورتوں کو قابو میں رکھنے کا۔ لڑکی کی سسکیاں دبی دبی تھی، جسے کوئی آواز دینے کی بھی اجازت نہ ہو۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے باپ اور دادی کو دیکھ رہی تھی۔ رباب کی سانولی رنگت اس کے لیے ہمیشہ ایک تانا بنی رہی۔ اسکول میں، محلے میں، یہاں تک کہ نرسنگ کی پڑھائی کے دوران بھی اسے کالی کہہ کر بلایا جاتا۔ رباب نے لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ رباب اپنے چہرے پر جب ٹوٹکے آزمانے کی کوشش کرتی تو زینب بی بی خفا ہو جاتی کہ اتنے خوبصورت چہرے کو بگاڑنے کا کس نے کہا؟ ارے اس سے بات نہ کرو، اس کی تو شکل دیکھ کر ہی دن خراب ہو جائے۔ پتہ نہیں کیسے اسپتال میں گھس گئی ہے۔ یہ تانے، یہ تحقیر اسے روز تھوڑا تھوڑا مارتی تھی، مگر رباب نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے خود کو پڑھائی میں مصروف رکھا، ماں کی جدائی کا صدمہ دل میں دفن کیا اور ہر ذلت کو خاموشی سے سہتی گئی۔ مگر شاید آج کی کوتاہی یا کسی کی چال سب کچھ بدلنے والی تھی۔ جب مزید باتیں سن کر سہنا مشکل ہو گیا تو اس نے اپنی سیٹ کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا۔ یہاں وہ مریضوں کی ٹیک کیئر کے لیے رکھی گئی تھی اور ہر مریضہ کے چہرے پر اسے ماں کا عکس دکھائی دیتا۔ رباب کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وارڈ میں کسی مریض کے کراہنے کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر اس کے اندر کی خاموشی کسی قبرستان سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نائٹ شفٹ ختم ہوئی، وہ اسٹور روم کے اندر گوشے میں جا چھپی۔ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن ٹوٹی چھت سے آ رہی تھی، مگر وہ بھی اس کے اندر کی سیاہی کو کم نہ کر سکی۔ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کچھ اکیلا وقت رو رو کر گزارنا چاہتی تھی، کچھ خلا، ٹراما جو انسان کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اچانک جیسے اس کے آس پاس کی فضا بدل گئی ہو، خوفزدہ آنکھیں ٹانگوں کے درمیان سمیٹ کر سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ ایک سناٹا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو، اور تب ایک سایہ کوئی بہت قریب، کوئی گہری آنکھیں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رباب نے سر اٹھایا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے صاف محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ وہ زور زور سے خود کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ خود کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو ختم کرنے کا خیال بھی اسے کئی مرتبہ آیا تھا، لیکن زینب بی بی کی قسم اسے ہمیشہ روک لیتی۔ کسی کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے اور رباب کے ہونٹوں سے چیخ نہ نکل سکی، صرف آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا۔ رباب کو یوں لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ لرزتی ہوئی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لی، مگر اب آنکھ بند کرتے ہی اسے وہ کالی آنکھیں نظر آتی، وہی جو چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی ہر پل اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ایک ڈراؤنا خواب اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کی ماں کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اتنی بار وہ ماں ماں کہہ کر انہیں جھنجھوڑنے میں لگی تھی، لیکن اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق بھی باقی نہیں تھی۔ ایک پرانی خون آلود کوٹھی میں پولیس سائرن کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھی، مگر مجرم وہاں نہیں تھا۔ ماں کی لاش فرش پر پڑی تھی اور دروازہ ٹوٹا ہوا۔ باپ اس کا یہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن وہی پیسہ ماں اور بیٹی کو نہیں ملتا تھا۔ اس نے ایک آنسو نہیں بہایا، بلکہ ماں کی آزادی پر دھیرے سے ماں کا ہاتھ چوما، دل میں وعدہ کیا کہ وہ اس شخص کی قید میں مزید نہیں رہے گی۔ وہ شاید اپنے باپ کو سزا نہ دلوا سکے، لیکن معاف کبھی نہیں کرے گی۔ وہ شخص جو اس کا باپ تھا، اپنی ہی بیوی کو جان سے مار کر رات کی تاریکی میں فرار ہو چکا تھا۔ دادی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ وہ ضرور اس معاملے کو سنبھال لیں گی اور ایک مشکل بھی اپنے بیٹے پر نہیں آنے دیں گی۔ ویسے بھی پیسے والوں سے کہاں پوچھا جاتا ہے۔ اوپر چھت سے دادی کی آواز آئی، جو روتی ہوئی پڑوسنوں کو بول رہی تھی، یہ عورت بد کردار تھی، میرے بیٹے کی عزت خراب کرتی تھی، مر گئی تو اچھا ہوا۔ اب یہ پوتی، یہ بھی اسی کی نسل ہے، اسے بھی نکالو۔ رباب نے نفرت سے اپنی دادی کو دیکھا، دل کیا کہ اس بوڑھی عورت کو یہیں سے دھکا دے کر مار دے جو اس کی ماں کے بارے میں غلط بول رہی تھی۔ پڑوس نے دم بخود اور پوتی
वो छोटी सी लड़की सहम कर एक कोने में छुपी खड़ी थी। दादी ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और घसीट कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जा, चली जा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उनके दिल में खौफ पैदा हो चुका था कि अगर पुलिस वाले ने इस लड़की का बयान ले लिया और इसके बाप के बारे में इसने बता दिया तो शायद उनके बेटे को फांसी हो जाए। पोती उन्हें क्या ही दे सकती थी, इसीलिए घर से निकालने का फैसला किया। बाकी कम अकल, ना पढ़ी लिखी औरतें भी उनके साथ थी। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ। लड़की बाहर ज़मीन पर गिरी। कोहनी से खून बहने लगा, मगर वो खामोश थी। आंखें बस खला में घूरती रहीं और बाप के नाम की गिरा दिल में बंद गई। सारी उम्र वो खुद को अपनी पहचान से मुतारिफ करवाती थी। बाप के नाम से भी नफरत थी। ये वही रुबाब थी, नन्ही सी, सहमी हुई रुबाब, जो आज भी लोगों के जुल्म सितम का निशाना बन रही थी। शायद गरीब और कम सूरत लोगों के नसीब में ऐसा ही लिख दिया जाता है। सड़क सुनसान थी, वक्त जैसे थम चुका हो। सब हवाएं फिजा हुर्मत बीबी की पाक दामनी और नाहक मौत पर अफसरदा थी। यहाँ का निज़ाम ऐसा है कि ताकतवर कभी सज़ा नहीं पा सकता। हर तरफ खामोशी, बस कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और आसमान पर उड़ते हुए जुगनू जो उसके लिए रास्ता बनाने वाले थे। वो खौफजदा सी सड़क पर चल रही थी। रुबाब एक पत्थर पर बैठ गई, खून आलूद बाजू को देखती रही। आम बच्चियों की तरह ज़रा सा कांटा लगने पर उसने हंगामा खड़ा नहीं कर लिया था। उनके सर पर बाप का साया होता है, शफीक बाप होता है, लेकिन यहाँ इसके नसीब में दोनों नहीं थे। काश वो खून अपनी नसों से निचोड़ सकती। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, मगर आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे। तभी एक खड़खड़ाती आवाज़ उसके करीब आई। बच्ची, तुम अकेली हो? रुबाब ने सर उठाया। एक अधेड़ उम्र की औरत, साड़ी में मलबूस, माथे पर लकीरें, मगर आंखों में नरम ध्यान था। रुबाब खामोश रही, आंखों में बहुत खौफ व हरास था। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो रुक गई। कहाँ है तुम्हारा घर? रुबाब कुछ ना बोली। औरत ने झुककर उसके जख्म को देखा, फिर उसका चेहरा थपथपाया। चलो मेरे साथ, मेरे घर में तुम्हें पनाह मिलेगी। रुबाब को लगा इस पर एतबार कर लेना चाहिए। किसी के जिस्म की हवस का निशाना बनने से बेहतर था। मर्द पर भरोसा करने के काबिल नहीं रही थी। इस औरत में अपनी माँ दिखाई देने लगी। रुबाब बस उसका चेहरा देखती रही। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। कुछ लम्हों बाद रुबाब ने धीरे से वो हाथ थाम लिया, जैसे बरसों बाद किसी ने पहली बार उसे हमदर्दी की हो। अचानक उसकी आंख खुली तो वह पसीने से शराबूर थी। बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को याद करते वो कब नींद की वादी में चली गई, उसे होश ही नहीं रहा। जिस्म का पोर पोर एक जगह बैठे रहने से दर्द कर रहा था। रुबाब नाइट शिफ्ट मुकम्मल करके वार्ड से बाहर निकली तो सुबह की हल्की रोशनी अस्पताल के सहन में फैल चुकी थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, चेहरे पर थकन और दिल में इज़्तिराब लिए वो कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी, जब सामने से डॉक्टर हादी आता दिखाई दिया। वो जैसे ही करीब पहुंचा, रुककर उसे घूरने लगा। रुबाब ने फौरन नजरें झुका ली, लेकिन हादी की आवाज़ ने उसके कदम वहीं जमा दिए। चलो घर। रुबाब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। सर? अंदाज ऐसा था कि जैसे वो उसे अपने घर जाने का कह रहा हो। रुबाब को लगा शायद उसे सुनने और समझने में गलती हुई है। क्या सुना नहीं? मैंने कहा चलो घर। रुबाब को लगा शायद वो सुनने में गलती कर बैठी है। अपनी बात का मतलब पूरा करने के लिए वो फिर से पूछने लगी, आपका मतलब है मैं? हादी ने आंखें सुकेड़ कर सर्द लहजे में कहा, नौकरी बचाने के लिए तुमने खुद अपनी मर्जी से उन पेपर्स पर साइन किया था। वो निकाहनामा था रुबाब, अब तुम मेरी बीवी हो। दिल खौफ से कांपने लगा। यूं लगा जैसे सामने वाला खड़ा उससे मजाक कर रहा है और अभी कहेगा कि तुम्हारे जैसे रंगत वाली लड़की के साथ भला मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसक गई। निकाह? उसके लबों से बस इतना निकला और दिमाग खाली हो गया। क्या वो शख्स इतना जालिम, इतना धोखेबाज हो सकता था? उसकी मजबूरियों का इस कदर फ़ायदा उठाया गया कि हवस पूरी करने की खातिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसने तो कागजात पढ़े ही नहीं थे। दिमाग सुन्न हो रहा था।
उसे यूं लगा उसका बाप दूसरा रूप लेकर इस शख्स की सूरत में सामने खड़ा है, और वो निकाह बगैर गवाहों के, बगैर काजी के, बगैर उसकी इजाज़त के। उसकी सांसें उखड़ने लगी। आपने ऐसा धोखा कैसे किया? ये तो फ्रॉड है। कल दुनिया उसकी किरदार पर ऐसा ही थूकेगी जैसे चंद साल कबल उसकी माँ के किरदार का मजाक बनाया गया था, और फिर उसे मौत की घाट उतार दिया। डॉक्टर हादी ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तमाशा ना करो रुबाब, तुमने खुद साइन किया, किसी ने मजबूर नहीं किया था। अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। रुबाब ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी वो अगर अब बोली तो अस्पताल में हंगामा हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी का फैसला करने वाला ये शख्स होता कौन है? वो किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे मर्दों के नाम से ही नफरत थी। सब लोग उन्हें घूरने में लगे थे। मरीज, नर्सें, वार्ड बॉय, सबकी नज़रें जैसे सिर्फ रुबाब पर जमी थी। तमाशे के खौफ से, इज्जत के लाले से वो होंठ भेजकर खामोश रही। ज़ैनब बीबी उसके आने का इंतज़ार कर रही होंगी। डॉक्टर हादी उसे अपनी गाड़ी तक ले गया। गाड़ी में बैठते ही रुबाब का ज़ब्त टूट गया। किस हक से आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं? उसकी आवाज़ लरज़ रही थी, मगर अब वो रो नहीं रही थी। वो गुस्से में थी, दुख में थी और टूटी हुई थी। क्या मुझे छोटे किरदार की लड़की समझ रखा है आपने? अपने अंदर के डर पर वो काबू पा चुकी थी। ये शख्स उसके बारे में जानता ही क्या था? कुछ भी नहीं जानता था, और ना ही वो उसके सामने टूट कर बिखरना चाहती थी। रुबाब, मत बोलिए मेरा नाम। आप जैसे लोग मोहब्बत का नहीं, शिकार का नाम लेते हैं। मैं नर्स थी, ज़रूरतमंद थी। आपने मौके का फ़ायदा उठाया। ये निकाह नहीं, जुल्म है। हादी ने उसकी तरफ देखा। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। मैंने जो किया कानून के दायरे में किया। तुमने दस्तखत किए अपनी मर्जी से। उसकी बात पर रुबाब ऐसे जैसे कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हादी ने कभी उसके मुस्कुराते हुए उसे देखा ही नहीं था। उसके चेहरे पर कोई छाई नहीं थी। साफ शफाफ चेहरा था, जिसको मेकअप की तह में भी नहीं छुपाया गया था। कौन कहता था कि वो औरत खूबसूरत नहीं है? वो बेइंतहा खूबसूरत थी। हादी उसकी एक एक खूबसूरती की खदोखाल पर तशरीह लिख सकता था। और निकाह के लिए औरत की मर्जी उसकी ज़बान से कबूल है कहना ज़रूरी नहीं। क्या मैं कोई फाइल थी जिस पर आपने लिख दिया और मेरा सब कुछ आपका हो गया? गाड़ी के अंदर एक पल को सन्नाटा छा गया। हादी ने गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हें जो कहना है घर जाकर कहना, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रुबाब ने एक जहर भरी निगाह उस पर डाली। जिम्मेदारी या गुलामी? हादी खामोश रहा। ये झटका सहना रुबाब के लिए आसान नहीं था। जो सारी उम्र अपनी ज़ात पर सवालिया निशान सुनती आई हो, उसके लिए अचानक का रद्द अमल कैसे हजम होगा? रुबाब ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन अब वो खामोशी से लड़ने का फैसला कर चुकी थी। ये जंग थी अपनी इज्जत की, अपनी शनाख्त की, और उस धोखेबाज शख्स के खिलाफ जिसने उसे कागज़ के एक टुकड़े पर बीवी बना दिया। गाड़ी जैसे ही गेट से अंदर दाखिल हुई, रुबाब का दिल अनजाने बोझ से डूबने लगा। उस हवेली नुमा घर की दीवारों पर खज़ां की सजीदगी छाई हुई थी, जैसे वक्त यहाँ थम सा गया हो। रुबाब की आंखों को जैसे किसी ने चौंका दिया हो। उसे खौफ आने लगा। यहाँ से भाग जाना चाहती थी। दरो दीवार पर छाई खामोशी और पुराने तर्ज की सजावट रुबाब को अनजाना सा लगा, और फिर जैसे कोई लम्हा पलट आया हो। माँ की चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरो दीवार पर सारी कहानी रकम थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक साया सा चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा। वो चेहरा, वो आंखें जिन्हें वो भूल नहीं सकी थी। वो दिन याद आने लगा जब उसकी माँ उस घर में सिसक सिसक कर मरी थी, और शायद उसे भी दोबारा इसी तरह से सिसक सिसक कर मारने के लिए लाया गया था। वो एक झटके से रुक गई। कमरे के कोने में रखी तस्वीर, या शायद किसी इंसान की मौजूदगी, एक अनदेखा सा खौफ, एक अजीब सी पहचान थी। वो उस तस्वीर में मौजूद शख्स को कैसे भूल सकती थी? दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत ही इसी शख्स से करती आई थी। एक नज़र उस कमरे की तरफ देखा जहां उसकी माँ ने आखिरी मर्तबा दम तोड़ा था। आज भी उस घर का नक्शा नहीं बदला था। हवा की सरसराहट में भी कोई पुराना दर्द घुला हुआ था।
मगर रुबाब ने आंखें बंद की, सर झटका और खुद को संभाला। हादी जो पीछे आ रहा था जैसे सब महसूस कर रहा था। रुबाब ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो कुछ भी नहीं पहचानी। सर, मुझे वापस जाना है। रुबाब का लहजा सर्द मगर पुख्ता था। हादी ने उसकी तरफ हैरत से देखा, जैसे उसकी बात को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हो। हादी के अल्फाज जैसे सूर फूंक रहे हों। यकीनन वो शख्स उसे पहचान चुका था। क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया? वो आहिस्तगी से बोला। हमारा निकाह तो बचपन में ही हो चुका था। ये तुम्हारी दादी और वो बचपन का निकाह जो उसके पाँव में जंजीर की तरह लटका हुआ था, जिसको वो कभी भी याद नहीं करना चाहती थी। उस शख्स ने उसे वो गहरे जख्म याद दिलाए। हादी के अल्फाज दरमियान में ही रुक गए। रुबाब ने तलखी से पलट कर उसे देखा। आंखों में एक चमक थी, जैसे बरसों की खामोशी में एक जख्म बोल उठा हो। रुक क्यों गए? बोलो ना, बोलो। कुछ नहीं भूली मैं, ना अब से ना तब से, जब पहली बार अस्पताल में आपको देखा था। हो सकता है बच्ची थी, लेकिन वो चेहरा, वो आंखें, वो लम्हा दिल पर नक्श कर गई थी। रुबाब का लहजा कांप रहा था, मगर उसकी आंखें खुश्क थी। बोलिए, आपको मेरी माँ के बारे में कुछ कहना था ना? बोलिए ना। कहो वो बदकिरदार थी और मेरा नाम नेहाद बाप नेक था। उसने गुस्से में आकर अपनी मर्दानगी दिखाने की खातिर कत्ल कर दिया। हादी खामोश हो गया। उसके चेहरे पर तकलीफ फैल गई। रुबाब ने अपनी बात जारी रखी। आवाज़ में गहरी तलखी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं सब भूली नहीं हूँ। मुझे सब याद है। वो रात, वो चीख, वो खून। मेरी माँ को जिसने मारा वो आपका नेक मामू था, और उसके बाद मेरी दादी ने मुझे धक्के देकर निकाला, क्योंकि मेरी माँ बदकिरदार थी। वो रो नहीं रही थी, आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक खामोशी थी जो चीख रही थी। हादी आगे बढ़ा, आहिस्तगी से बोला, मुझे यकीन है रुबाब, तुम्हारी माँ बदकिरदार नहीं थी। इतना सुनना था कि रुबाब का ज़ब्त टूट गया। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, जैसे बरसों से रोकी हुई चीख आज आज़ाद हो गई हो। क्यों मार दिया उसे? मेरी माँ ने क्या किया था? हादी बस उसे देखता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे क्या बताता कि बचपन से अब तक खोखली जिंदगी गुजारता आया है। अपने घर लौट कर आने का दिल नहीं करता। बस एक उम्मीद थी कि रुबाब उसके पास लौट आएगी। और फिर उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि दूर इसी हवेली के एक कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुँचती थी, एक पुरानी व्हील चेयर में बैठा एक बूढ़ा शख्स था, जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी, जिसकी शक्ल देखते उसे माँ की सिसकियाँ याद आने लगती थी। उसका बाप, जिसका जिस्म मफलूज हो चुका था, आंखों से सब कुछ देख रहा था। रुबाब की चीखें, उसकी बातें, सब कुछ सुन रहा था, मगर बोलने, चीखने या माफ़ी मांगने की सकत उसके जिस्म में बाकी नहीं रही थी। आंखों में पछतावे की चिंगारियां जल रही थी। काश वो अपनी माँ की बातों में आकर बीवी पर हाथ ना उठाता, तो आज उसका भरपूर घराना होता। ये लड़की उसकी बेटी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जुबान कुफल थी, जैसे खुदा ने उसके गुनाहों की सज़ा लफ्ज़ छीन कर दी हो। रुबाब अब भी रो रही थी, मगर उन आंखों से नहीं जो सिर्फ दुनिया के लिए होती हैं, बल्कि उस दिल से जो बरसों की बेबसी और सच्चाई की कब्र बना बैठा था। हिचकियाँ लेती, आंसू पीती रुबाब जैसे ही होश में आई, उसका वजूद लरस गया। ज़मीन पर बैठी वो लम्हा भर को साकित रही, फिर हिचकिचाती सांस के साथ खुद को संभाल कर उठने लगी। उठकर उस शख्स पर वार करने के लिए भागने लगी थी कि ज़ैनब बीबी के अल्फाज याद आने लगे, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो। और अब जब अल्लाह हिसाब पर उतर आया था, तो वो मारकर हिसाब में कमी बेशी नहीं करवा सकती थी। मुझे जाना है, वो धीरे से बड़बड़ाई, जैसे खुद से मुखातिब हो। फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। वो इस घर में मज़ीद रुकती तो शायद दिल की धड़कन बंद होने से मौत हो जाती। उसने कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से एक मजबूत गिरफ्त ने उसका हाथ थाम लिया। रुबाब, हादी की आवाज़ में ना गुस्सा था ना ज़बरदस्ती, बस एक इल्तिजा थी, एक खालिस बेबसी।
कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें अब कहीं दरबदर की ठोकरें खाने नहीं दूंगा। बहुत मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। यहाँ से वो कहीं ज्यादा महफूज है। उसे खुलकर सांस लेने का मौका तो मिलता है। यहाँ हर कदम पर उसे माँ की पुकार सुनाई देगी। रुबाब का जिस्म पल भर को कांप उठा। वो पलटी, निगाहें उसकी गिरफ्त पर जम गई, फिर आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया। छोड़ दो डॉक्टर हादी। उसके लहजे में सर्द लोही थी, जैसे सारे जज्बाती तूफान के बाद वो पत्थर हो चुकी हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं। तुम भी उसी खून के वारिस हो जिसने मेरी माँ का खून किया। तुम्हारे मामू ने मेरी माँ को मारा, उसी शख्स को तुमने इस घर में पनाह दी। तुम भी इसी खानदान के हो। मुझे इस हवेली के किसी मर्द पर भरोसा नहीं। हादी खामोश हो गया। उसके लब हिले मगर अल्फाज हलक में दब कर रह गए। यूं लगा जैसे वक्त ने कारी ज़रब लगाई हो, मर्दानगी पर और मर्द होने पर गहरा तमांचा मारा हो। रुबाब उसकी आंखों में देखती रही, जैसे आखिरी बार यकीन का टूटा हुआ अक्स देखना चाहती हो। फिर पलटी और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। हवेली से बाहर निकलते ही गहरे सांस लेने लगी। अपने आप को पुरसकून करने की नाकाम कोशिश की। पूरा जिस्म खौफ और गुस्से से कांप रहा था। रुबाब वापस उसी छोटे सादा से घर पहुंची जहां उसकी जिंदगी ने थोड़ी सी पनाह पाई थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से वही मानूस आवाज़ आई जो उसके दिल को सुकून देती थी। आ गई बेटी, थक गई होगी, पानी ले आऊं? रुबाब के लब हल्के से मुस्कुराए। घर में कुछ तो जादू था कि माँ की गोद में आते ही उसका सारा खौफ ख़त्म हो गया। सामने वही बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने बरसों पहले एक सड़क पर सहमी हुई नढाल बच्ची को देखा था और दुनिया की परवाह किए बगैर उसे अपने साथ ले आई थी। आज वो अपनी आंखों से अपने मुजरिम को सज़ा मिलते देख आई थी, वो सज़ा जो खुदा उसे दे रहा था। बेशक कमज़ोर इंसान किसी को पकड़ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह की पकड़ तो सबसे सख्त है। चंद बरस पहले इस औरत ने बेखर्ज होकर इसे अपनाया था। उस दिन के बाद उस औरत ने रुबाब को ना सिर्फ रहने की जगह दी, बल्कि उसे पढ़ाया, नर्सिंग की तालीम दिलवाई और सबसे बढ़कर उसे अपने होने का एहसास दिया। रुबाब अब उसी औरत का वैसा ही ख्याल रखती थी जैसे एक बेटी अपनी माँ का रखती है। हर सुबह उसकी दवाई वक्त पर देना, गर्म पानी तैयार करना और हर रात उसके पाँव दबाना, ये सब रुबाब की खुशी बन चुका था। आज जब वो हवेली से लौटी, उसका दिल टूटा हुआ था, मगर यहाँ आकर वो जैसे दोबारा जुड़ने लगा था। रुबाब ने चुपचाप खाना गर्म किया, बूढ़ी औरत के पास बैठकर उसे खिलाया और आहिस्ता से बोली, अम्मा जी, आपकी वजह से मैं आज भी अपनी नज़रों में शर्मिंदा नहीं हूँ। दुनिया ने मुझे यतीम लावारिस कहा, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया। बूढ़ी औरत ने उसके हाथ थाम लिए। बेटी, कुछ लोग खुदा की तरफ से आजमाइश होते हैं और कुछ उन आजमाइशों में पनाह बनकर भेज दिए जाते हैं। तुम बस सब्र न छोड़ना, सच एक दिन खुद बोलता है। रुबाब की आंखें नम हुई, मगर लबों पर सुकून था। आप ठीक कहती हैं, आपका एक एक लफ्ज़ सच होता है। आज मैं अपनी आंखों से उस शख्स को अंजाम तक पहुंचता देखकर आई हूँ माँ जी। ज़ैनब बीबी समझ चुकी थी कि वो किसकी बात कर रही है, लेकिन उन्होंने उसे वक्त दिया। हादी खाली हाथ रह गया था। दुनिया के सामने तरक्की और खूबसूरती उसके लिए मायने नहीं रखती थी और दूसरों की नज़रों में अपने लिए सताइश देखकर उसे कभी फ़ख्र महसूस नहीं हुआ था। उसका दिल पल पल तड़पता रहा। वो औरत जो उसके निकाह में थी, जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, वो उसके पास आकर महफूज महसूस नहीं करती थी। वो आज पूरी तरह हार रहा था, जैसे उसकी मर्दानगी पर किसी ने सवाल उठा दिया। तुम्हारे मामू ने मेरी माँ को मारा। उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं। जब से रुबाब यहाँ से गई थी, उसका बाप मुँह ही मुँह में कोई बात करना चाह रहा था। शायद माफ़ी मांगना चाहता था या फिर गालियाँ दे रहा था। उसने नीचे देखा, जहाँ वही मफलूज वजूद व्हील चेयर पर बैठा था। जवानी की सारी मर्दानगी ख़त्म हो चुकी थी। वो गुस्सा और घमंड खुदा ने छीन लिया था। इस इंसान को उसकी औकात याद दिलाई थी कि वो खुदा की ज़ात के बिना कुछ भी नहीं। कितनी अजीब बात थी ना, जो ज़बान कभी हुक्म चलाती थी, आज वही ज़बान
गंग हो चुकी थी। जो हाथ कभी फैसले लिखते थे अब वही हाथ कपकपाते थे। हादी के दिल में आग दहक रही थी। वो चाहता तो उसे सजा देता, शोर मचाता, मगर क्या सजा दे सकता था उस वजूद को जो अब सिसकने की ताकत नहीं रखता था। खुदा ने खुद ही उसे ऐसी सजा दे दी थी जिसकी आगे दुनिया की अदालत बेबस थी। मगर एक बात तय थी, रुबाब से पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वो इसकी मोहब्बत थी, शायद जुनून भी। अब उसे हासिल किए बगैर गुजारा नहीं था। उसकी आंखों की खामोश उदासी, इसके वजूद की बेखबरी, वो सब हादी को अंदर तक तोड़ देते थे। रुबाब नहीं जानती थी, लेकिन वो हादी के सुकून और बेचैनी का इम्तिजाज बन चुकी थी। रुबाब ने हौसले के साथ सफ़ेद नर्सिंग यूनिफॉर्म पहना और आहिस्ता कदमों से अस्पताल की राहदारी में दाखिल हुई। हर कदम एक बोझ की तरह था, मगर वो जानती थी ये नौकरी उसके लिए सिर्फ जरिया नहीं बल्कि बका का तकाजा है। इतनी जल्दी उसे किसी और अस्पताल में नौकरी मिलने वाली नहीं थी, और हादी से डरकर वो ये बात साबित नहीं करना चाहती थी कि वो अपनी माँ की तरह कमज़ोर है। उसकी माँ के पाँव में इसके नाम की जंजीर थी, जबकि रुबाब के पाँव में अभी तक कोई जंजीर नहीं बंधी थी। मगर जैसे ही वो नर्सिंग स्टेशन पर पहुंची, सबकी नज़रें उस पर उठी और फिर झुककर एक दूसरे से सरगोशियां करने लगी। सब उसे अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। उसका दिल जैसे डूबने लगा। उसे खौफ आने लगा कि वो लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। शायद कल के तमाशे की वजह से उन्होंने कुछ और अखज़ कर लिया हो। तभी एक नौखेज़ मगर चालाक मिजाज डॉक्टरनी, जिसका नाम डॉक्टर शिफा था, उसके करीब आकर तंजिया मुस्कुराई। शिफा ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी आम सूरत लड़की उसके रास्ते का कांटा बन सकती है। हादी जैसे शख्स के साथ भला कौन लड़की शादी नहीं करना चाहती। सुबह होते ही हादी ने कमरे से निकाल दिया। क्या बात है, फिर से आ गई? रुबाब ने नज़रें झुकाई रखी। वैसे तुम्हारे रंग के मुताबिक तुम्हें पिछली सफ में होना चाहिए था, लेकिन तुम तो सीधा सरहादी तक पहुंच गई। वाह वाह, तुम्हारी भी चालाकियां कम नहीं। जिसका पलड़ा भारी होता है लोग भी उसी का साथ देना शुरू कर देते हैं। यही वजह थी कि सब डॉक्टर शिफा के साथ थे। रुबाब के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर शिफा ने थोड़ा झुककर सरगोशी के अंदाज में कहा, तुम जैसों को तो सरहादी जैसे लोग मुंह भी नहीं लगाते। बस कुछ लम्हों की हमदर्दी और तुमने समझ लिया जैसे कोई महल की रानी बन गई हो। रुबाब की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो जानती थी अब आंसू नहीं, हौसला दिखाने का वक्त है। बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया गया। वाह हादी, तुमने बगैर कुछ कहे भी इस कटहरे में खड़ा कर दिया। उसने ज़ब्त से दांत भींचे, आवाज़ को बमुश्किल काबू में रखा। सर हादी को बहुत मुबारक हो। और वो पलटने ही लगी थी कि पीछे से एक मानूस दबंग आवाज़ गूंजी। मुबारक किस बात की? सबने पीछे देखा। डॉक्टर हादी खुद मौजूद था। चेहरा गुस्से से सुर्ख, आंखें जैसे शोले बरसाती हों। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता सामने आया और पूरे स्टाफ के बीच एक गहरी धमकी भरी आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ पर पूरा स्टाफ खामोश हो गया। सब एक दूसरे को उंगलियां दिखाने लगे। कुछ के नज़दीक शिफा मासूम थी तो कुछ के नज़दीक शिफा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी, मेरी औरत, मेरी इज्जत पर ज़बान चलाने की? सब साकित रह गए। डॉक्टर शिफा की गर्दन नीचे झुक गई, होंठ खुश्क हो गए। रुबाब मेरी बीवी है, मेरी मलकियत है। कोई अगर इस पर उंगली उठाएगा तो वो मुझ पर उंगली उठाएगा। हादी ने सबको नफरत भरी निगाहों से देखा। यही वो लोग थे जिसने रुबाब की जिंदगी को तंग किया हुआ था। उसका रंग, उसकी हैसियत, उसका माजी, सब कुछ मुझे मंजूर है। आज के बाद अगर किसी ने भी इसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आखिरी शिफ्ट होगी, याद रखना। पूरे वार्ड में जैसे बिजली दौड़ गई। रुबाब ने हैरत, तकलीफ और बेयकीनी से हादी को देखा। मलकियत? हादी ने उसकी तरफ देखा, एक ऐसी शिद्दत से जिसमें मोहब्बत भी थी, अना भी, और एक जुनून भरा तहफ़्फ़ुज़ भी। मगर रुबाब की आंखें नम थी, उसकी रूह ज़ख्म खोरदा थी। वो भले उसके हक़ का ऐलान कर रहा था, मगर वो अब भी अपने एतमाद के टुकड़ों को समेट रही थी। जबकि शिफा
رباب سے معافی مانگنے لگی۔ اب اسے رباب کی حیثیت بدلنے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ رباب اپنے نازک قدموں سے اسپتال کی دہلیز عبور کر کے نکل گئی، جیسے وہ اپنی عزت کو بچا کر کسی جنگ سے واپس آئی ہو۔ مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ کسی کے سوالوں کا جواب دینے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ہادی کی وجہ سے اس کی زندگی تنگ ہوئی تھی۔ اگر وہ آج آ کر اسے بچا رہا تھا تو اس میں غلطی بھی اسی کی تھی۔ دل میں ایک طوفان تھا اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، نہ کسی کو اطلاع دی، نہ کسی کو کوئی صفائی دی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے دروازے پر قدم رکھا، اندر سے ماں جیسی زینب بی بی تیزی سے لپک کر آئیں۔ رباب نے کوئی سلام، کوئی جملہ ادا کیے بغیر خود کو ان کی گود میں گرا دیا۔ اماں جی، میں تھک گئی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج شفا کی آنکھوں میں حقارت دیکھ کر وہ خود کے لیے بہت برا محسوس کر رہی تھی۔ یہ رنگ تو اللہ نے دیا ہے، اس رنگ پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ زینب بی بی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ کیا ہوا میری جان؟ رباب نے سسکیوں میں سارا دکھ بیان کر دیا۔ ڈاکٹروں کی باتیں، ہادی کا اعلان، لوگوں کی نظریں، اپنی بے بسی۔ کاش وہ کبھی واپس نہ آتا۔ میری زندگی میں سکون تھا اماں جی۔ حالات جیسے بھی تھے میں مقابلہ کر رہی تھی۔ مجھے دولت اور شہرت نہیں چاہیے، اور اب ہر طرف تماشا۔ زینب بی بی خاموشی سے سنتی رہی، پھر گہری سانس لے کر کہا، بیٹی حقیقت سے منہ موڑا تو نہیں جا سکتا۔ کسی دن یہ حقیقت کھلنا ہی تھی۔ لوگ تو تمہیں قدم قدم پر ملیں گے۔ لوگ تیرے رنگ کو دیکھ کر زبان چلاتے ہیں، مگر میں نے ہادی کی آنکھوں میں تجھے چاہت بنتے دیکھا ہے۔ رباب سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ہادی کو اپنے باپ کے ترازو میں تول رہی ہو، جبکہ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں واقعی وہ راہ کا کانٹا لگتا ہے تو بتا، بیٹھ کیوں گئی ہو؟ طلاق لے لو۔ یہ سن کر رباب جیسے ساکت ہو گئی۔ مرد پر اعتبار کرنا بہت مشکل تھا۔ ایسے ہی تھا جیسے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دینا۔ ایک خاموشی پورے کمرے میں چھا گئی۔ ہادی اسپتال کے کونے کونے چھان چکا تھا۔ رباب اب اس کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج ہوئے واقعے کی وجہ سے وہ ایسے ہی بہت پریشان رہے گی۔ ہر نرس، ہر وارڈ بوائے سے پوچھ چکا تھا رباب کہاں ہے، مگر جیسے اس کی زندگی سے وہ اچانک غائب ہو گئی ہو۔ دل میں ایک خوف تھا، کہیں وہ کسی اور درد میں نہ ڈوب گئی ہو، کہیں اس کا جنون اسے مزید نہ توڑ دے۔ اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھی تو وہ اس کے سارے دکھ سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ وہ در بدر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے رباب کے گھر کا پتہ تھما دیا۔ وہ شام کے سائے میں اس کے دروازے تک آ پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ وہ وہی ہوگا۔ دروازہ زینب بی بی نے کھولا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ پہچان چکی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا شوہر ہے۔ ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں غصہ آیا، پھر ضبط سے پرسکون ہو گئی۔ السلام علیکم خالہ۔ ہادی کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے بولی، بیٹھو، چائے لاتی ہوں۔ وہ بادب طریقے سے بیٹھا۔ ہادی خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں مہذب خاموشی تھی اور دل میں تیز طوفان تھا۔ وہ بار بار بند کمروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ نکل کر باہر آ جائے۔ زینب بی بی چائے لے کر آئیں اور سنجیدگی سے بولی، رباب باہر نہیں آئے گی۔ ہادی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ہادی کے آنے کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ لیکن میں اسے صرف دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار، زینب بی بی نے نرمی سے مگر سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس کے ماضی، اس کے درد، اس کے قاتل رشتوں سے خود کو الگ کرو۔ یہ رشتہ تبھی چلے گا جب تم اسے عزت دو، اس کا درد اپناؤ اور نئی بنیاد رکھو۔ رباب اب ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اس کی ماں کی موت کا سبب بنے۔ ان کا لفظ لفظ سچ تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی اور نہ ہی سامنے والے کو جھوٹی امید دینا چاہتی تھی۔ ہادی نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی گھاؤ پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ میں جانتا ہوں خالہ، میں جانتا ہوں کہ میرے خاندان نے کیا کیا، لیکن میں ان سب سے خود کو جدا کر چکا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ نام، نہ جائیداد، نہ خاندان، صرف رباب چاہیے۔
ज़ैनब बीबी ने पहली बार हादी की तरफ गौर से देखा। वो ना झूठ बोल रहा था ना ड्रामा कर रहा था। आप उसे मना लें, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी की आखिरी सच्चाई है। रुबाब। ज़ैनब बीबी ने अब ये फैसला किया था कि वो अपनी बेटी को गलत फैसला नहीं लेने देंगी। कोई पुराने तजर्बे से वो अपनी खुशियों से दस्तबरदार कैसे हो सकती है। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी फैल गई और किसी बंद कमरे के पार रुबाब की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। हादी को घर से भेजने के बाद वो सीधा रुबाब के कमरे में आई। किसी तीसरे के सामने उनकी जंग लड़ने के बाद अब वो अपनी बेटी को समझाना चाहती थी। ज़ैनब बीबी खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरे पर माँ जैसी शफकत थी, लेकिन लहजा फैसले जैसा सख्त था। किसी के भले के लिए सख्ती भी करनी पड़े तो बुराई नहीं है। रुबाब, अगर वाकई तुम इस हफ्ते कोई फैसला ना ले पाई तो फिर वो होगा जो मैं चाहूँगी। रुबाब ने चौंक कर देखा। ज़ैनब बीबी, जिन्होंने हमेशा उसे अपनी मर्जी से जीने दिया, आज फैसला अपने हाथ में ले रही थी। तलाक या फिर साथ। ये जुमला सुनकर रुबाब जैसे पत्थर की हो गई। ऐसे लगा जैसे उसे किसी मोड़ पर धकेल दिया गया हो, जहाँ पीछे माजी, आगे मुस्तकबिल और बीच में सिर्फ उलझन थी। दिन गुजरते गए और रुबाब खामोश रही। अस्पताल से इस्तीफा दे चुकी थी और हादी ने भी उसे किसी किस्म का फोर्स करने की कोशिश नहीं की थी। हत्ता कि उस शाम जब ज़ैनब बीबी उसके कमरे में दाखिल हुई, उनके हाथ में सुर्ख दुपट्टा था, सादा लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ। हफ्ते के अंदर ज़ैनब बीबी ने सारा फैसला ले लिया था और वो चाहती थी कि रुबाब उससे पहले अपने फैसले पर डट जाए, वो उसकी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर कर दे। उन्होंने आहिस्तगी से दुपट्टा रुबाब के सर पर रखा और कहा, अगर मुझ पर एतबार है तो वो करो जो मैं कहती हूँ। रुबाब ने उनकी आंखों में झांका। वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक माँ की दुआ और एक औरत की समझ थी, उनका तजर्बा था। निकाह बहुत सादा था, ना बैंड बाजा, ना हार सिंगार, ना शोखी और ना ही लोगों का हुजूम था। सिर्फ चंद वो लोग थे जो दिल से दुआ देना चाहते हों, सिर्फ चंद गवाह, कुछ खामोश दुआएं और एक सादा सा कबूल है। रुबाब का दिल धड़क रहा था। वो आदि के बराबर बैठी खामोश थी। शादी का नाम सुनते ही हमेशा उसके अंदर कोई चिंगारी सुलगने लगती थी, पर आज वो चिंगारी धीरे धीरे आंखों के पानी में तहलील हो रही थी। उसके मुकाबले में हादी बहुत खुश और मुतमईन था। ज़ैनब बीबी दोनों की झोली भरकर दुआएं देने लगी। उन्होंने सारी उम्र रुबाब का फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से अदा किया था और अब भी वो एक माँ की हैसियत से उसे घर बसाने का मशवरा दे रही थी। रुखसती के बाद हादी उसे एक नए फ्लैट में लाया। ना वो पुरानी हवेली, ना वो माजी की दीवारें। ये नया घर जैसे एक नया सफ़ा हो जिस पर अभी कुछ ना लिखा गया हो। रुबाब आम दुल्हनों की तरह तैयार नहीं थी। सादा सुर्ख लिबास, रोज़मर्रा का हल्का सा मेकअप और बालों में सादगी की एक महक थी जिसने हादी को अपना दीवाना बना लिया था। कमरे के आईने के सामने खड़ी होकर उसने एक नज़र खुद पर डाली और अगले लम्हे दिल में एक टीस उठी। उन दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं था। दुनियावी सानिया के लिहाज से देखा जाए तो हादी परफेक्ट इंसान था। कहाँ मैं काली सांवली सी और कहाँ वो दूध जैसा सफ़ेद रोशन चेहरा। उसने नज़रें झुका ली। शर्मिंदगी सी महसूस हुई, जैसे वो उस रिश्ते के काबिल नहीं। तभी पीछे से हादी का हाथ उसकी कलाई पर आ ठहरा और एक हल्का सा झटका और वो उसकी तरफ मुड़ी। हादी ने नरमी से मगर पूरे हक से उसे अपनी तरफ खींच लिया। आंखों में सच्चाई थी और आवाज़ में वो वालहानापन जिसे कोई लफ्ज़ छू नहीं सकता। कभी भी रंगत पर ना सोचना रुबाब। मेरी आंखों से देखो खुद को। तुम्हें छूने को, हासिल करने को, हक जताने को मेरा दिल कितना गुदगुदा रहा है, तुम नहीं जानती। रुबाब की पलकें लरसने लगी, दिल की दीवार जैसे गिरने लगी हो। वो खामोश रही लेकिन आंखें सब कुछ कह गई। हादी ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पेशानी पर एक खामोश बोसा रख दिया। चंद साल बाद आंगन में शाम की हल्की सुनहरी धूप फैली थी। बावर्ची खाने से खुशबू आ रही थी जो सीधी रुबाब के दिल तक उतर रही थी। रुबाब ने अपने काम को खुदाफिज कह दिया था क्योंकि अल्लाह ने शादी के 1 साल बाद नई जिम्मेदारी डाल दी थी। वो सहन में एक आरामदेह चारपाई पर बैठी थी। गोद में नन्ही सी बेटी मासूम कहकहे लगा रही थी। कभी उसके दुपट्टे से खेलती और कभी अपने नन्हे हाथों से रुबाब का चेहरा छूती।
वो अपनी माँ की खूबसूरती से बहुत मुतासिर थी। रुबाब की आंखों में एक सुकून था, एक आसूदा सी मुस्कुराहट जो बरसों के दुख और खौफ के बाद उभरी थी। चंद कदम के फासले पर हादी चूल्हे के सामने खड़ा था, आस्तीने चढ़ाए, हाथ में चम्मच लिए, बड़े इनेमाग से सालन में चम्मच चला रहा था। कभी कभी वो गर्दन मोड़कर रुबाब और बेटी को देखता और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर जाती। ये मंजर किसी ख्वाब की ताबीर जैसा था। वही हादी जो कभी गुस्से और शिद्दत का पहाड़ लगता था, आज मोहब्बत और नरमी का सहारा बन चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी परफेक्ट भी होगी। रुबाब के दिल में ख्याल आया, शायद जख्म भरने का यही मतलब होता है, जब माजी की तलखियां याद तो आईं मगर दिल पर बोझ ना डाले। उसने प्यार से बेटी के बाल सहलाए और नजर उठाकर हादी को देखा। हादी की निगाह जैसे फौरन उसकी आंखों से मिली। उस पल में कोई लफ्ज नहीं बोला गया मगर सब कुछ कह दिया गया।